in motion, then rest, reference frame, then this example we took, then this few of the memes which I did present to you that day. So इसमें किसी को, if anyone has any doubt, then he or she may ask, और उसके बाद I can proceed further. Okay, doubts we'll do later. Firstly, one of you asked a question that day, the other day, that what would be a motion of a ball? Just let me check the chat. What was the exact question? I answered in the chat also, but I'll tell you the exact question so as no one misses out. The question, okay, basically, so I'll tell you the question. The question was कि एक ball, if we are throwing it upwards or we are dropping it from a height, what would be the motion of that ball? Okay, so I have this diagram. ये एक image which I found which I found from Google, and ये इसका I'll tell you कि क्या motion होगा. If you remember that day, so we had learned only linear motion, curvilinear. Yeah, only two motions, if I'm not wrong, linear and curvilinear. Okay, so linear motion, straight line motion, curvilinear, curve path का motion. So अभी क्या होगा? This is not exactly like this is a projectile. Okay, projectile भूल जाओ. बस इतना we have to consider कि okay, when we throw up a ball in the air, firstly what happens? Straight line में ball ऊपर जाता है. Okay, I'll draw. So this is what happens. This goes straight. ऐसे ऊपर गया. Please pardon. Okay. Then, due to certain air resistance, there is also some kind of a lateral movement of the ball. Okay. Or for example, if you are अगर ऊपर से ball फेंक रहे हो, ठीक है? For example, this is the ball. अगर ऐसे जाएगा, then it bounces and फिर थोड़े टाइम के लिए सीधा and फिर आगे जाता है. तो मतलब it's kind of a translatory motion. मतलब कर्वी लीनियर भी है इसमें, थोड़ा सा कर्व पाथ भी है बॉल का, एंड सीधा पाथ भी है. केवल ये एक मोशन नहीं है. सो इसी को हम लोग ना प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, विच इज लाइक अ डीप कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट मैं बता दे रहा हूँ कि इसको ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं बेसिकली. जब आपका लीनियर मोशन भी हो रहा होता है, कर्वी लीनियर मोशन भी हो रहा होता है, सो उसको मिला के ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं. जब इसको ट्रांसलेटरी बोलते हैं क्योंकि ये आगे भी जा रही है बॉल एंड नीचे भी आ रही है, तो इसको ट्रांसलेटरी बोलते हैं. यही क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद प्रज्ञा का था, सॉरी प्रभा, if I'm not wrong. I try to explain in the chat also that day. Is Prabha there? Or anyone else who has any doubt in that, तो बता दो कि ये clear हो गया है, then I'll proceed further. Okay, Vikas. हाँ, तो yeah, okay, as RN has already answered कि there are lectures on the Margdarshan app, so you don't have to worry about that. Just go through the lectures and you'll get कि क्या हुआ है previous classes में. ज़्यादा cover नहीं हुआ है, so you can do with the lectures. ओके, क्लियर है ना? तो इसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, कर्वी लीनियर प्लस लीनियर मोशन. सो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि काफी डिटेल डिस्कशन हो चुका है प्रीवियस टॉपिक्स पे एंड रिवीजन की जरूरत भी नहीं है, आई गेस. सो लीनियर हो गया, कर्वी लीनियर हो गया. रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन मतलब कि सपोज अ फैन इज मूविंग, दैट इज रोटेशनल मोशन. ज्यादा इसमें कुछ ब्रेन लगाना नहीं है. अ फैन इज मूविंग, दैट इज रोटेशनल मोशन, दैट इज इट. उसमें जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, दैट पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ. तो अगर कोई भी ऐसा मोशन है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, दैट सॉरी सेंटर ऑफ मास, कीप दिस वर्ड असाइड. अगर बॉडी से पास हो रहा है, ठीक है, मतलब उस बॉडी के अंदर से पास हो रहा है तुम्हारा रोटेशनल एक्सिस, दैट इज नोन एज रोटेशनल मोशन.
circular motion where the body moves around in a circular path. Oscillatory motion, the movement of a pendulum, एक पेंडुलम जो ऐसे 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 एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से टू एंड फ्रो, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. Periodic motion that repeats itself after a fixed interval of time. So one question which might arise in your minds कि what is the difference between curvilinear and circular motion, क्योंकि दोनों सिमिलरली साउंड कर रहा है, राइट? बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो वो कर्वीलिनियर मोशन, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर मोशन. तो कुछ डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, बेसिक डिफरेंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों मोशन सेम नहीं है. अगर सेम होते तो एक के अंदर ही लिखते. तो मतलब कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस है इसके बीच में और इसके बीच में? तब तक आई विल ड्रॉ. ओके. Oh, okay. Shagun has asked an example of periodic motion. So, rotation, you take the rotation of Earth, वो periodic motion है, क्योंकि वो एक certain period के बाद repeat करता है. Okay, revolution भी periodic है. हमें पता है कि 24 hours rotation 24 hours में ही होगा, so periodic हो गया वो. एक certain period के बाद repeat हो रहा है. ऐसा कभी नहीं होता है कि 26 hours में एक पूरा दिन खत्म हो रहा है. That is 24 hours and that is a universal standard. उतने में ही रिपीट होगा, तो वो पीरियोडिक मोशन हो गया. इज दैट क्लियर? So हाँ, I was telling the difference between curvilinear and your circular motion. ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा एंड आना चाहिए जरूर, क्योंकि यू माइट कंफ्यूज कि कर्वीलिनियर भी वही चीज है, पाथ तो वही है उसका, सर्कुलर में भी वही चीज हो रही है, पाथ वही है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? सो डिफरेंस ये है कि कर्वीलिनियर में क्या होता है ना, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रोलर कोस्टर राइड. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. ट्रैक है उसके, यहाँ से वो जो वे उसका वो होता है, जिसमें काट जो सीट्स होती हैं, अब ये मूव करना चालू कर रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है, सर्किल में क्या होता है, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है. रेडियस पता है सबको? रेडियस होता है. तो क्या ऐसा होता है क्या कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो रेडियस 2 मीटर है, और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो रेडियस 6 मीटर हो जाएगा क्या? इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है कभी कि मैं यहाँ से यहाँ आया तो रेडियस 6 मीटर हो गया? नहीं होता है. सिंपल सी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स. इसको डिटेल क्लासेस में इसमें तभी टीच यू कि अबाउट, क्योंकि काफी क्वेश्चन सर्कल से आते हैं. तो 2 ही मीटर रहेगा. बट अब ये बताओ, जस्ट अ सेकेंड. Aryan, Smita, can you please tell, is my video lagging? Is anyone there? Is my video lagging or audio unstable, something like that? Because there's a bandwidth issue from my side. थोड़ा शटर है. Okay, okay. Okay, I'll just switch my Wi-Fi. Yeah, just give me 1 minute. Okay. हाँ तो आई होप इट्स फाइन नाउ. ठीक है, तो ये रेडियस चेंज नहीं हो रहा है. तुम सर्कल्स के सेंटर से कहीं पर भी चले जाओ, ये रेडियस नहीं चेंज होगा. 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगा. दैट मीन्स दिस इज सर्कुलर मोशन. बट एक रोलर कोस्टर का एग्जांपल लो. आप सपोज करो कि रोलर कोस्टर का सेंटर हम कहीं यहां मान लेते हैं. सर्कल नहीं है सेंटर, इसको हम बस एक सेंटर दे रहे हैं अपने तरफ से रैंडम, कि कुछ तो उसका मशीनरी होगा जहां से वो रोलर कोस्टर कंट्रोल हो रहा है. ओके, तो उसको हम सेंटर कंसिडर कर रहे हैं. तो अब ये बताओ, जब यहाँ पे था मैं इस समय पे, तो मेरा रेडियस था 4 मीटर. अब रोलर कोस्टर आगे बढ़ा और मैं यहाँ पे आ गया.
यहाँ पे, क्या रेडियस अभी भी सेम होगा? नहीं होगा सेम, कोई चांस ही नहीं है सेम होने का। पहली बात तो ये सर्किल नहीं है, वो हमने एक सेंटर मान लिया है, ठीक है, एक आर्बिट्री हमने टुक कर ले लिया है, वी हैव जस्ट टुक सम सेंटर, वी हैव अज्यूम्ड अ सेंटर। तो अब यहाँ से 6 मीटर 7 मीटर जो भी हो, डजेंट मैटर। तो डिफरेंस याद रखना आप लोग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड कर्वी लीनियर मोशन। ये कंफ्यूजन हो सकता है कि दोनों तो सेम ही चीज है। एंड रोटेशनल मोशन का भी लगेगा कि हाँ यार, रोटेशनल और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है। तो उसमें सर्कुलर एक स्पेशल केस ही समझ लो रोटेशनल का, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। बट रोटेशन को और डीप में हम पढ़ेंगे जब आगे के चैप्टर्स में एक बार देखेंगे। और खैर इतना मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंशिएट करने को यही हो सकता है कि कर्वी लीनियर और सर्कुलर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो जरूर याद रखना कि कर्वी लीनियर और सर्कुलर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डिफरेंस क्या है दोनों मोशंस में। ओके, ठीक है, तो फाइन, इतना क्लियर है। नाउ अब हम लोग आते हैं, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर हो गया होगा अब तक, आई होप। नाउ अब अपना बेसिक हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आर्यन वाज टीचिंग यू यस्टरडे कि चार्ज का मूवमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। चार्ज का स्पीड, स्पीड नहीं बोलेंगे उसको, करंट एक्चुअली, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाई स्पीड, मोशन, टाइम, ये सब क्या है, ठीक। तो पहले तो अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज फिक्स्ड क्वांटिटी विथ विच वी कंपेयर टू एन अननोन क्वांटिटी। ये एक जनरल डेफिनेशन दे दी है ताकि हम लोग रिलेट कर पाए कि एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है टाइम की। तो ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। इसमें ही हम लोग हमेशा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही है अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। ओके ओके फाइन, हाँ। तो अब ये है कि मोशन, स्पीड एंड टाइम, ठीक है। तो स्पीड सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है। एवरीवन नोज व्हाट इज स्पीड। सिंपल डेफिनेशन, को ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला से ही हम लोग हर, मैंने बोला था कि लाइक मैथ्स को ही हम लोग हमेशा इंटर रिलेट करते हैं फिजिक्स से, वही कनेक्शन बनता है दोनों के बीच में। सो बेसिकली स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इट। अगर उसके कुछ डेफिनेशन तो लिखना आएगी ही नहीं, बट कॉन्सेप्चुअल चाहिए तो ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इट। और अगर और एक्सप्लेन करना है तो लिखते हो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग सब कुछ स्टैंडर्ड लेना चाहते हैं। आप एक पर्टिकुलर बॉडी की बात कर रहे हैं जिसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सो अभी दिख ही रहा होगा यहाँ पे दो इमेजेस हैं, है ना। डिस्टेंस पर यूनिट, हाँ ठीक तो है। चलो, तो दो इमेजेस दिख रही हैं अब, ठीक। अब ये बताओ कि मैंने बताया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन स्पीड के भी दो बाइफिकेशंस होते हैं, ठीक है। दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू टू थिंग। पहला होता है कि हो सकता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है बॉडी की। एंड दूसरा हो सकता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल स्पीड है, ठीक है। ये, अब इसको समझने के लिए वी हैव टू पिक्चर्स ऑन आवर साइड्स। पहली पिक्चर जल्दी से प्लीज आइडेंटिफाई इफ यू आर इनटू मूवीज, और ये इफ यू हैव मतलब रेगुलरली वॉच करने का यहाँ पे कोई वो नहीं दे रहा हूँ, बट यू मस्ट हैव सीन दिस सीन और यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट दिस समवेयर। कुछ याद होगा तो जल्दी से एक बार क्विकली लिख दो। अभी रिसेंटली वी ऑल्सो हैड टाइगर विद अस इन द रिसेंट वेबिनार विच वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो जल्दी से एक बार बता दो क्या है, एंड देन आई एक्सप्लेन कि क्या मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको। इमेज enlarge, I'll enlarge the image, देखो ध्यान से एंड जल्दी से बताओ एक बार। सी आई यूज दीज मीम्स एंड इमेजेस क्योंकि विजुअल मेमोरी जो होती है ना, विजुअल मेमोरी, आइडेंटिक मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में ज्यादा
सम लंबे समय तक वी कैन रिटेन एंड याद रहता है हमको इफ वी लर्न थिंग्स थ्रू इमेजेस. ओके. ओके शगुन आई सेड बागी थ्री. ओके क्लोज इनफ बट बागी थ्री तो नहीं है. ओके हाँ वॉर. वॉर मूवी का है. चलो ठीक है कोई बात नहीं. अगर नहीं भी पता है मूवी कोई बात नहीं. आई टेल यू. यहाँ पे क्या होता है. ये दो कार्ड्स दिख रही होंगी छोटी छोटी. अब देखो ये दो कार्ड्स दिख रही होंगी. तो इसमें क्या होता है. टाइगर इज ट्राइंग टू एस्केप. ओके. इन दी ब्लैक कार. ठीक है. जो ये ब्लैक वाली कार है इसमें टाइगर इज ट्राइंग टू एस्केप एंड सर्टेनली ऋतिक रोशन अपीयर्स आउट ऑफ द क्रूज विच जस्ट ब्लास्टेड ऑफ. तो अभी क्या होता है. अब देखो. अब ऋतिक इज ट्राइंग टू चेज हिम. अब वो उसको चेज कर रहा है तो अब इसमें क्या होगा. टाइगर पहले आगे आ चुका था. काफी आगे आ चुके थे. तो ऋतिक को वहां तक पहुंचने के लिए सर्टेन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तब वो उसकी स्पीड मैच कर पाएगा. उसकी स्पीड मैच कर पाएगा तभी वो उसके बराबर आ पाएगा. ठीक सिंपल सी बात एकदम. कि जब उसकी स्पीड मैच करेगा अगर ये से 80 किलोमीटर पर आर पे जा रहा है ब्लैक कार एंड व्हाइट कार अभी पीछे ये सॉरी येलो अभी पीछे दिख रही है. तो मतलब कि 60 किलोमीटर पर आर पे कह सकते हैं कि हाँ ये है. मतलब कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस है तभी आगे पीछे हैं दोनों. अब ये 60 किलोमीटर पर आवर से इसने वहां से यहां तक 2 से 3 सेकंड में 2 सेकंड में इसने कर ली. बट अब ये बताओ इसको इससे आगे निकलना है. तो क्या फिर से ये मतलब अब इंजन पे लोड भी आ चुका है राइट. एक स्पीड पकड़ चुकी है कार. तो अब फिर से जो नेक्स्ट 2 सेकंड में ये स्पीड इसकी होगी क्या वो जरूरी है कि 60 किलोमीटर पर आर ही हो वो स्पीड. अब इसको अगर इससे आगे निकलना है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 0 to 60 अगर 2 सेकंड में गया तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी जीरो वो 60 ही कवर करेगा. उससे ज्यादा भी कर सकता है. और अब तो इंजन भी मतलब हो गया है लोड में आ गया है एंड अब उसको आगे भी निकलना है. ठीक है. सेकंड गियर पे डाल वाल कर वो जाएगा ना इससे आगे. तो मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि अगले 2 सेकंड में भी वो 60 किलोमीटर पर आर पे ही रहेगा. हो सकता है अगले 2 सेकंड में वो 80 पहुंच जाए या 100 पहुंच जाए क्योंकि उसको उससे आगे निकलना है. और जैसे ही अगले 2 से 3 सेकंड में 100 पहुंचेगा इससे आगे निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो. यहाँ पे हुआ क्या. 1 मिनट. यहाँ पे ये हुआ कि एक तो इसका जस्ट सेकंड आई ड्रॉ एंड शो कि क्या हुआ एक्चुअली. ठीक. देखो 0 to 2 सेकंड में अगर 60 गया. अब उसको उससे आगे निकलना है तो जरूरी है क्या कि अगले 2 सेकंड में भी 60 ही जाएगा. उससे ज्यादा ही जाएगा. इंजन अब गर्म भी हो चुका है एकदम रेडी है. नेक्स्ट गियर पे डाल के आगे जाएगा. तो हो सकता है अगले 0 to 2 में वो चला जाता है 80 किलोमीटर पर आवर. तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले 2 सेकंड में और दूसरे 2 सेकंड में जो स्पीड थी उसमें डिफरेंस आया है. चैट में एक बार क्विक रिप्लाईज दे दीजिए कि हाँ डिफरेंस आया है. तभी उससे आगे निकल पाएगा वो. वरना कोई चांस नहीं आगे निकलने का. स्पीड में डिफरेंस आया. 60 से 80 किलोमीटर पर आर हो गई स्पीड. मतलब कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है. स्पीड बदली उसकी. ठीक है. स्पीड बदल गई उसकी. इसको ही बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक. क्योंकि उसकी स्पीड बदल गई. अब ये तो हो गया कि हाँ स्पीड बदली 60 से 80 हो गई. तो हाँ मतलब और प्लस उसको और आगे निकलना है तो अगले 2 सेकंड में फिर जो उसके बाद जो आएगा तो मतलब 0 to 2 2 to 4 और 4 to 6 उसमें और स्पीड बढ़ेगी. तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है. तो कहीं से भी कांस्टेंट है ये. 60 से 80 गई 80 से 100 पे आ चुका है वो अब तक. स्पीड कांस्टेंट तो है ही नहीं. 100 इसको 80 20 20 का डिफरेंस मत मानो. इसको मान लो तुम आ गया है ये 110 पे आ गया है. मतलब पहले 20 का डिफरेंस फिर 30 का डिफरेंस. तो मतलब कि इस टाइम इंटरवल में 20 की स्पीड बढ़ी फिर 30 की बढ़ गई. मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है. डिस्टेंस पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है.
पहले 2 सेकंड में वो इतना कर रहा था, अगले 2 सेकंड में उसने इतना किया, तीसरे सेकंड में उसने इतना किया। मतलब कि चेंज हो रहा है सब कुछ यहाँ पे। तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ठीक, इसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन आई एक्सप्लेन की नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, सेकेंड इमेज देखो। ये वाला किसी को याद है, कुछ भी थोड़ा बहुत याद है, किस किस मूवी का सीन है? थोड़ा आसान हो जाएगा फिर समझाना। किसी को याद है? हाँ, ये सबको पता है। ये सभी को पता होगा, बहुत ही बढ़िया एकदम मूवी थी। एंड चलो अब इसका एग्जांपल बताते हैं कैसे, कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। अब ये लोग एक रोलर पे हैं। ठीक, तो रोलर का ध्यान रखना, एक तो हैवी मास होता है बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत हैवी मास होता है रोलर का। एंड ड्राइंग प्लीज पार्डन मी। ठीक है, ड्राइंग पे ध्यान मत दो। एंड इन लोगों को भी बना ही देते हैं छोटा छोटा एकदम यहाँ पे। ठीक, अब ये लोग एक रोलर पे हैं। ठीक, इनको शायद कहीं कहीं जाना था, मतलब मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, बट एग्जाम्पल मुझे याद था तो मैं आपको सोचो बता दूं। तो अब इनको कहीं जाना था, और इसका मास बहुत हैवी होता है, याद रखना। तो इसमें पता है मास, अभी चलो अच्छा मास ये नहीं बताते हैं, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना जान लो कि मास इसका बहुत हैवी है, तो तुम खुद ही सोचो, अगर किसी का मास बहुत हैवी है तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो अपनी स्पीड, जस्ट, उसके लिए पॉसिबल है कि वो अपनी स्पीड बदल ले हर 2 सेकंड या 4 सेकंड में? अब वो जो गाड़ियां थी दोज वर सुपर कार्स, मतलब एकदम लेम्बोर्गिनी एंड ये, और वो अपनी स्पीड बदल सकती हैं, वो एक्सेलरेट कर सकती हैं। अगर 2 सेकंड में वो 40 जा रही है तो नेक्स्ट 2 सेकंड में हो सकता है कि वो 100 भी पहुंच जाए। बट यहाँ पे पॉसिबल है ये, इस एग्जाम्पल में पॉसिबल है कि वो लोग अगले, अभी यहाँ पे हैं तो 2 सेकंड में, और फिर अगले 2 सेकंड बाद वो डायरेक्ट से 20 किलोमीटर पर है इस समय, और नेक्स्ट 2 किलोमीटर 2 सेकंड बाद वो 60 60 पे पहुंच गए। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, गोवा जा रहे थे, हाँ ठीक है चलो। ओके, इसका आंसर बताओ, गोवा के ख्यालों में मत खो जाओ अभी आप लोग। इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 सेकंड में ये इसका नाम क्या था, मानव एंड जो भी है ये लोग, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 सेकंड में वो लोग 40 पे थे, 20 पे थे, और अगले 2 सेकंड में फिर वो 40 पे पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए? जैसे कि ये गाड़ियां जा रही हैं, ये जो ऊपर वाली दो कार्स हैं, ये तो हर 2 सेकंड में अपनी स्पीड बदल रही हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग भी बदल पाएंगे? कोई चांस ही नहीं है। ठीक, उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बताएंगे जब हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या हो रहा है? हाँ, नो बिकॉज ऑफ हेवी मास, ठीक है। ठीक है ठीक है। एक्सेलरेटर, हाँ ओके, इनर्शिया इनर्शिया पे आ गए हो तुम लोग, चलो ठीक है। ज्यादा डिटेल्स अभी यहाँ पे नहीं देनी है। ठीक, चलो। तो अब इसकी स्पीड क्या है? इसकी स्पीड कांस्टेंट है। 20 किलोमीटर पर आवर पे स्टार्ट किया था, और 20 किलोमीटर पर आवर पे ही चल रहे हैं, और 1 घंटे से उसी स्पीड पे चल रहे हैं। मतलब कांस्टेंट स्पीड है, ये स्पीड चेंज नहीं हो रही है बिल्कुल भी। अगर 10 15 पे चल रही है, 20 पे चल रही है, तो 20 की 20 ही है, आधे घंटे तक 20 है वो स्पीड। बट इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रेसिंग कार्स हैं, इनमें तुम एक्सेलरेट कर सकते हो, अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस कार इज ओवरटेकिंग द अदर कार। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। स्पीड जिसमें कांस्टेंट है वो हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कांस्टेंट नहीं है वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस एग्जांपल को एक बार छोटा कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कुछ और बताना है इसमें? क्योंकि अब जो इसके आगे टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं वो काफी अच्छे टॉपिक्स हैं। मतलब ये तो बेसिक एकदम है जो कि 10th क्लास तक में आते हैं, बट जो अगले आगे पढ़ने वाले हैं वो प्रोबेबली 10th के सिलेबस में नहीं आते, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
एंड आई हैव लाइक मेड अ स्लाइड ऑन दैट स्पेसिफिकली, ताकि इजीली समझ में आ जाए सबको कि व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू ऑल। एक बार बस क्विकली चैट में, so as I could know that you all have understood it fairly. केवल एक ही को समझ में आया क्या? बाकी लोग को नहीं आया समझ में? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। ओके थैंक यू, बस बस ठीक ठीक, ये क्लियर हो गया। ये अब सी what happens now is that you'll have this thing in your eidetic memory, okay? You'll always remember this कि okay, I remember this example in that there was an example of movie धमाल, example of movie war, कि हाँ भाई हो क्या रहा है। सो अगर डेफिनेशन भूल भी जाओगे ना, देन ऑल्सो यू रिमेंबर कि क्या कॉन्सेप्ट था थ्रू इमेजेस। दैट्स व्हाई यूज ऑल दिस इमेजेस एंड लास्ट टाइम आई यूज्ड मीम्स एज वेल, ठीक है? तो इसीलिए ये इमेजेस यूज करता हूँ, बट एकदम फिर उसका लूप में नहीं जाना है कि अभी धमाल में ही खो गए हैं और वॉर में ही खो गए हैं। ठीक, चलो ओके। सो चलो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्या होते, देखो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। अभी बस इतना जान लो कि फिजिकल क्वांटिटीज एक नाम है, ठीक? एक ऐसी क्वांटिटी जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब उसमें भी दो बाइफिकेशन है, स्केलर, वेक्टर। ठीक, वेक्टर बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा। तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोग कैसा लगेगा आई डोंट नो, बट ये अच्छा एग्जाम्पल है क्लियर करने के लिए कि क्या होती है असल में वेक्टर क्वांटिटीज। पहले तो स्केलर जान लो क्या होती है, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक, इसका मतलब मिनट, अब टाइम मान लो अभी बज रहे हैं 2:38। तो ऐसा है क्या कि मैं यहाँ पे आप लोग को अगर बता रहा हूँ टाइम कि यार द टाइम इज राइट नाउ इज 2:38, सो इज इट दैट आई से कि 2:38 इन नॉर्थ डायरेक्शन या 2:38 इन वेस्ट डायरेक्शन? ऐसा है क्या? और ऐसा भी नहीं है कि अगर एल से कि 2:38 अभी जॉर्जटाउन में 2:38 है तो सुभाष चौराहा पे 2:45 नहीं हो रहा होगा ना? डायरेक्शन से ये नहीं बदल रहा है इसका कुछ भी। डायरेक्शन अगर आपने अपना पोजीशन बदला, कुछ बदला, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें बस एक चीज है कि उसकी वैल्यू होती है, बस। स्केलर क्वांटिटीज यही चीज होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, केवल उनकी एक वैल्यू होती है एंड उसी वैल्यू से हम लोग सब कुछ डिटरमाइन करते हैं। ठीक, और जैसे कि मास ले लो। मास मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, दैट इज मास इन सिंपल टर्म्स। तो अगर से 70 kg मेरा वेट है, जो कि नहीं है 70 kg है, एंड आई ट्रैवल सम डिस्टेंस इन सम डायरेक्शन, आई ट्रैवल से 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, ओके, टूवर्ड्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऐसा तो है नहीं कि नॉर्थ में चलते चलते मेरा वेट भी बदल जाएगा। और चलो वो हटा दो, सिंपल सी बात है। सो जब आप कभी आपसे कोई अपना वेट पूछता है, सो ऐसा तो होता नहीं कि यू टेल कि 70 kg नॉर्थ ईस्ट। वी नेवर से दैट, राइट? वी नेवर एवर से दैट कि माय वेस्ट इज 70 kgs बट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, or my time, the time my watch is showing it's 2:38 but towards southwest. No one says that ever, okay? So मतलब डायरेक्शन वाली चीज जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, बस हमको एक वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक, 70 हो गया, 2:38 हो गया, 120 मिनट्स हो गए, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बस एक मैग्नीट्यूड, ओके मैग्नीट्यूड हटा दो, वैल्यू, बस वैल्यू याद रखना है कि वैल्यू जिसमें चीज होती है और डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती हैं, दोज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ओ, दिस हैज टू बी क्लियर। ओके, सो नाउ scalar quantities, everyone has got an idea what are scalar quantities.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेक्टर। अब सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल बनाया है जो कि इट विल हेल्प यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड एकदम यू विल बी एबल टू एम्बाइब दिस कॉन्सेप्ट एंड एकदम एम्बेड हो जाएगा दिमाग में कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो, ये है, दिख रही ये इमेज सबको दिख रही है? ठीक है, ये दिस इज से a normal day when the pandemic did not strike us। ये उस समय की बात है, ठीक है, एंड सब कुछ नॉर्मल था। वी हैवंट बीन स्टक बाय द पैंडेमिक, सब नॉर्मल है, कोचिंग क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट हम लोग के कोचिंग की क्लासेस नहीं है, बट से कोई कोचिंग चल रही है। ठीक, अब उस कोचिंग में अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, कोई साइंस से, कोई आर्ट से, कोई कोई तुम्हारा कॉमर्स से हो गया। तो सबके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक, एवरीबडी हैज देयर ओन टैलेंट्स, सबके पास कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई गिटार, कोई किसी चीज में, सबके अपने अपने ट्रेड्स होते हैं कि हाँ मेरा ये फोर्टे है एंड दिस इज माय टैलेंट एंड दिस इज माय वैल्यू। ठीक, कंसिडर योर सेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अपने आप को स्केलर मानो, क्योंकि क्या है, यू हैव सम वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली वी डोंट रेट दैट वैल्यू आउट ऑफ 10 20 30 40, बट वी हैव दैट वैल्यू। ठीक है, एंड जस्ट कंसिडर इट कि सपोज all of us who are in the call right now, who are in the meet right now, suppose we all have a value, say एवरेज वैल्यू। ठीक है, कोई अभी हम लोग इतना नहीं नॉलेज हुआ है, बट वी आर लर्निंग, वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सो इवेंचुअली वी विल रीच अ हायर वैल्यू। से अभी हम लोग की वैल्यू आउट ऑफ 100 में से एवरेज 60 है, 70 है। ठीक, 70 वैल्यू हम लोग के आउट ऑफ 100 में से। ठीक, और सबकी 70 वैल्यू किसी की किसी फील्ड में है, किसी की किस फील्ड में है, बट एक कॉमन फील्ड लेते हैं कि पढ़ाई में, मेरा एग्जांपल ले लो, पढ़ाई में मेरी वैल्यू 70 है। ठीक, तो अब मेरे पास वैल्यू है। ठीक, बट यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू तो है मेरे पास, बट मेरे पास डायरेक्शन नहीं था। और डायरेक्शन क्यों नहीं है, आई विल टेल यू। ये जो 70 है, ठीक, एंड ये जो है ये हम लोग की कोचिंग नहीं है। ठीक, दिस इज सम अदर कोचिंग, आई वोंट नेम एनी कोचिंग, बट से कोई भी कोचिंग है जहाँ पे बेसिकली कोचिंग्स हैव बिकम अ कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, वी ऑल नो, एक्सेप्ट फॉर आर कोचिंग। ठीक, तो ये कोई कोचिंग है जहाँ पे रैंडम पढ़ाई हो रही है, उन्होंने पैसे लिया आपसे 70 और आपको बोला कि भाई आप आपको हम पढ़ाएंगे, आपकी वैल्यू को हम मेंटेन करेंगे या बढ़ाएंगे, बट वो दावा करते हैं, ऐसा होता नहीं जनरली। 70 हमारी वैल्यू है, ठीक है, डन। इतना क्लियर हो गया कि हमारी वैल्यू है, हमने 70 आंक ली उसको। अब देखो क्या होता है, अब हम सबको क्वालिफाई करने हैं एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो हमारे पास वैल्यू तो है बट डायरेक्शन नहीं है हमारे पास। दिक्कत ये हो रही है कि यार एग्जाम, अब देखो, कंसिडर सिविल सर्विसेज और एनी एग्जाम, सिविल सर्विसेज में तो सिलेक्शन रेशियो बहुत मतलब कम होता है। ठीक, बट उनका ही होता है जिनके पास सही डायरेक्शन होता है। ठीक, केवल उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। तो सही डायरेक्शन के लिए हिडन टेक्स्ट है यहाँ पे, दिखाते हैं क्या है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हिडन डायरेक्शन, सॉरी, वैल्यू को डायरेक्शन किसने दिया हम लोग को? ओझा सर, रिस्पेक्टेड ओझा सर, इति मैम एंड शौर्य सर एंड नीलेश सर, इन लोगों ने, दे आर गिविंग अस द डायरेक्शन, दे आर टेलिंग अस कि केवल पढ़ने से नहीं होगा, वी हैव टू बी इन द राइट डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि केवल किसी भी कोचिंग में चले जाओ आप, इलाहाबाद की किसी कोचिंग में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, नॉट नेमिंग एनी स्पेसिफिक कोचिंग, बट जाओ वहां पे, चाहे जितनी वैल्यू हो आपके पास, बट इफ यू डोंट हैव द डायरेक्शन, कुछ नहीं होने वाला है। बगैर डायरेक्शन के कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से एक बेसिक का कॉन्सेप्ट हमको ये मिलता है कि हमें स्केलर नहीं बन के रहना है, हमें वेक्टर बनना है। तो अब क्या किया हमने, हमने अपनी वैल्यू में ऐड किया डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन दे रहा है हमको? रिस्पेक्टेड फैकल्टीज। ठीक, ये लोग हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, एंड पथ ज्योति आईएएस इज गिविंग इज द डायरेक्शन। ठीक है, अगर इफ आई हैव टू कंसोलिडेट एंड से दैट, एक सिंगल वर्ड में अगर बोलना हो, ठीक है, कि हु इज गिविंग अस डायरेक्शन, तो पथ ज्योति आईएएस इज गिविंग अस द डायरेक्शन, क्योंकि इसके अंदर ही हमारी सारी फैकल्टीज इंक्लूडेड हैं। ठीक, सर मैम सब लोग। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि पथ ज्योति आईएएस ने हमें डायरेक्शन दिया, तो उसने हमारे लिए क्या काम किया, वो बन गया वेक्टर। अब हम भी वेक्टर बन गए। हम पहले स्केलर थे,
केवल वैल्यू थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, बस पढ़ते जा रहे थे पढ़ते जा रहे थे पढ़ते जा रहे थे, कोई रास्ता नहीं था कि बस पढ़ रहे हैं, पता नहीं है, बस बस सिलेबस उठाया, देख लिया हाँ भाई ये होता है GS1 GS2 GS3 GS4, और पढ़ रहे हैं रैंडम। ऑप्शनल तक सेलेक्ट करना नहीं आता था। अब हम सबको पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और हम लोग सीख रहे हैं। तो मतलब कि हमको डायरेक्शन किसने दिया? पथ ज्योति IAS ने हमको डायरेक्शन दिया। तो अगर अब उसको एनालॉजिकली रिलेट किया जाए, सो पथ ज्योति IAS इन द सेम वे कंसिडर फोर्स। अब थोड़ा सा लूसिड टर्म से आओ टेक्निकल टर्म्स में। फोर्स एक तरीके से सर ने हम लोग को एक पुश दिया, एक फोर्स दिया हम लोग को। फोर्स दिया कि हाँ अब तुम लोग को इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। ठीक है, एंड कितना अच्छा वी ऑल आर डूइंग, वी आर हैविंग रेगुलर डिस्कशंस, वी आर मेकिंग क्वेश्चंस। उसके पहले वी नेवर डिड दिस। सो वी हैव वी हैव द गाइडेंस ऑफ आवर रिस्पेक्टेड फैकल्टीज, जिन लोगों ने हमको डायरेक्शन दिया, उनके वजह से हम लोग वेक्टर बन पाए। एंड वेक्टर्स वही क्वांटिटी होती है जिनके पास वैल्यू भी होती है एंड डायरेक्शन भी होता है। ये ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, सॉरी। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये याद रखना कि जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, वही वेक्टर बन पाएगा, बाकी सब लोग ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है क्या हाल चल रहा है। तो मतलब बाकी कोचिंग्स में, बट अब हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास डायरेक्शन है, सो प्रोबेबली वी वुड पास विद फ्लाइंग कलर्स। वी ऑल होप एट लीस्ट फॉर दैट। तो ठीक है, इतना क्लियर। एक बार क्विक रिस्पॉन्स यार, सी आई कीप ऑन आस्किंग रेगुलरली प्लीज, मतलब इसको उस सेंस में मत लेना, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि वॉट एवर आई एम सेइंग इट्स बिकमिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बस इसीलिए आई कीप ऑन आस्किंग। ठीक है, ओके। कुछ एग्जाम्पल, कुछ मतलब और जानना है क्या करना है, सही है ना? मतलब इट्स फाइन राइट? और कुछ एग्जाम्पल्स तो इसमें बहुत है। ये तो एक मैंने मतलब ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग को डायरेक्शन मिलेगा। ओके था, ओके 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 शगुन, ओके निकिता, ओके नर्सिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो समझ में आ गए सबको कि हाँ। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और, यू मस्ट हैव नोटिस, अरे व्हाट इज हैपनिंग, ये इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे मैंने एक एरो लगाया है। इस एरो का क्या है मतलब? इस एरो का सिंपल सा मतलब है, कुछ ज्यादा जानना नहीं है, हर चीज का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक? मीटर को शॉर्ट में M लिखते हैं, ठीक? किलोमीटर को KM लिखते हैं। वैसे ही वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो लगा देते हैं बस। यहाँ देखो पथ ज्योति IAS के ऊपर एरो लगा हुआ है। क्यों लगा है? क्योंकि वो एक वेक्टर है, उसने हमको डायरेक्शन दिया है। सही में मतलब फिजिकल फिजिक्स के टर्म्स में देखा जाए तो ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पथ ज्योति IAS। ये ये हमने डिराइव किया है खुद से कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक? बट टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो फोर्स है, फोर्स अब एक वेक्टर है। डिपेंड करता है कि आप, सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा समझ लो इसको कि किसी ने कोई कोचिंग की हो पहले कभी, तो वो जो आप पे फोर्स लगा रहे थे, ठीक, वो गलत जगह पे लगा रहे थे फोर्स। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सब कोचिंग खराब है, बट हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हो आपको। समझ रहे हो? मतलब आपको तैयारी इतनी कम समय में करनी है, इतनी ज्यादा कोर्स को कवर करना है, सो दे आर नॉट गिविंग द राइट डायरेक्शन। बट अब हम यहाँ पे आए तो सर हैज पुट इन ऑल हिज एफर्ट टू फॉर अस, सो दैट वी कैन गेट द राइट डायरेक्शन। तो अभी फोर्स का डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? पहले हम लोग अवे फ्रॉम द एग्जाम जा रहे थे, शायद सिलेक्शन नहीं हो पाता। नाउ वी हैव द चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, क्योंकि फोर्स सही डायरेक्शन में लग रहा है। इसको और सिंपल एग्जांपल से, ओके, एक बॉक्स है बस। अभी हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ना, वेक्टर्स को नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये फोर्स का चैप्टर है। अब इस पे, अब यहाँ पे खाई है, ठीक है, यहाँ पे खाई है, ठीक।
Why isn't being selected here? Okay, okay, sorry. ये F, अरे यार ये क्या, ये F4 से यहाँ डायरेक्शन लगा रहे हैं, ठीक। अब हमें टास्क दिया गया है कि यू हैव टू सेव दिस बॉक्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द खाई। ये जो गड्ढा है यहाँ पे नहीं गिरना है, तो अब हम फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो गिरेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि हाँ यार फोर्स लगाएंगे, इसका मास है ही, थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा ये, और यहाँ से यहाँ गिरते गिरते यहाँ गिर जाएगा। तो अभी तक हम इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, से ईस्ट में लगा रहे हैं हम फोर्स, तो क्या चांस है कि ये बचेगा, बॉक्स गिरेगा ही, जैसे ही ये क्लिफ के एज पे पहुंचेगा गिर जाएगा नीचे। बट अब ये देख लो कि अगर इसी बॉक्स को हमको बचाना है यहाँ से गिरने से, तो फोर्स इस तरफ लगाएंगे ना, फिर इधर गिरने से बचाना है तो फोर्स इस तरफ लगाएंगे, वेस्ट की तरफ, तब ये बचेगा। बस एकदम सिंपल से टर्म से समझ गए कि यार सही डायरेक्शन मिला तो हम लोग बच गए। सेम गोज फॉर अस एज वेल, सही डायरेक्शन मिला तो हम लोग बच गए, इधर आ गए, बॉक्स नहीं गिरेगा नीचे। क्लियर हो गया? सिंपल से फोर्स का कॉन्सेप्ट ये वेक्टर का, आई हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। तो इसके लिए एक एग्जांपल मुझे अभी दिमाग में आया, तो आपको मैंने बता दिया। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स राइट नाउ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या टाइम हो गया? 2:52 हो गया। चलो, अब वेक्टर्स के डायरेक्शन होते हैं, ठीक, और ये हमारे सी सैट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि अ मैन इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन विथ एन एंगल ऑफ दिस, तो फाइनल डेस्टिनेशन उसकी बताओ कहाँ होगा वो। तो यही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो वो हम लोग, आई थिंक स्मिता विल बी, स्मिता एज वेल एज नीलेश सर, ही विल बी टीचिंग अस दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस, सो मतलब in a much more detailed manner, and you'll get to learn more in those classes. फिजिक्स में we don't have to be concerned about these kind of questions, but एक एग्जांपल के लिए I can tell you कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, this is called origin, रेफरेंस पॉइंट सबको याद है, आई टोल्ड यू, ठीक है, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, सीधे जा रहे हैं यहाँ से। सपोज करो स्टार्टिंग में ही कह दिया एग्जामिनर ने कि द बॉय इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टूवर्ड्स एट द बाइसेक्शन ऑफ द वाई एंड एक्स एक्सिस। 45 डिग्री भी नहीं कहेंगे, एट द बाइसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो मतलब ये इधर जा रहा है। नाउ ही टेक्स अ टर्न, से अराउंड 30 डिग्री टर्न या कुछ भी टर्न, एंड ऐसे गया। नाउ उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, तो नाउ टेल व्हाट इज द एंगल ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ऐसे करके लेकिन आज के क्वेश्चन, बट वो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली, फिजिक्स में वी डोंट हैव टू बी कंसर्न्ड अबाउट दोस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स एवरीवन। ठीक है, सो ओके, सो लाइक इट वाज आई हैड टू जॉइन द क्लास अर्जेंटली, सो अभी का प्रेजेंटेशन यहीं तक था, बट आई हैव बीन मेड द प्रेजेंटेशन, बट आई कैन टेल यू व्हाट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आर। ठीक है, 10 मिनट है तो बता देते, 5 मिनट है। इस सर इन दी पैनल, सर हैं क्या? नहीं है? क्या करें, बताया जाए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाए? आप लोग लिख दो चैट में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है, मेजोरिटी के साथ जाएंगे। चलो ओके, मेजोरिटी इज सेइंग यस, चलो ठीक है, क्विकली जस्ट 5 to 6 minutes आई टेल यू डिस्टेंस डिफरेंस क्या होता है। यार यहाँ पे आई डोंट हैव द प्रेजेंटेशन रेडी बाय नाउ, बट आई मेक एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई टेल यू क्या होता है। सो अभी क्विकली आई टेल यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सिंपल सा एकदम टर्म है, कितना कवर किया। हिंदी में अगर बताएं कि मतलब अगर एक इंसान है, ठीक, एंड इफ आई हैव टू टेल कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक, सो दैट इज नोन एज, मतलब सॉरी कितना डिस्टेंस बोल रहा हूँ, मतलब कितना उसने एक्चुअल पाथ क्या है उसका,
एक्चुअल पाथ, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक। अब फिर से एक एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। और अच्छा ओके, अल्ट्रावाइट एयर, फिर उसको हटाना पड़ेगा। ठीक, सपोज ओके, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम प्रयागराज हियर, उसके हिसाब से आई गिव द एग्जांपल। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम प्रयागराज, जस्ट अ क्विक रिस्पॉन्स एकदम से, ताकि यू आर एबल टू रिलेट व्हाट विद व्हाट आई एम सेइंग, और एल्स आई विल गो विद अनदर एग्जांपल। ओके, चलो ठीक है, जितने भी हैं ठीक है, इट्स फाइन। एंड जो नहीं भी हैं, इवन दे विल आल्सो गेट एग्जांपल। ऐसा कुछ नहीं कि केवल प्रयागराज वालों को एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक। अब सपोज करो ये है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, दिस इज सुभाष चौराहा। तो कुआं लग रहा है, सॉरी सॉरी, फिर से बनाते हैं। दिस इज मी स्टैंडिंग हेयर एट द चौराहा। ओके, ये सुभाष चौराहा है। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब जाना है हॉट स्टफ चौराहा। पर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम इलाहाबाद, प्लीज ऐसा वो मत सोचना कि ये क्या यार, ये तो केवल प्रयागराज प्रयागराज। मतलब आई टेल यू बेसिकली क्या है कि दिस इज मतलब एक चौराहा ही है ये, सिंपल सा। एंड दिस इज अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम दिस चौराहा टू दिस चौराहा, मतलब एकदम स्ट्रेट रोड है, कुछ कोई टर्न वन नहीं, यू टर्न है बट टू वे लेन है, बट ठीक है, स्ट्रेट रोड एकदम। तो अगर मैं कहूंगा कि मुझे यहां से यहां जाना है एंड से कि ये हॉट स्टफ चौराहा है, दिस इज सुभाष चौराहा। अब मैंने कहा, मैं आर्यन यहाँ पे, इसने कहा कि अरे यश यू हैव टू कम हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर एट द हॉस्टल चौराहा। तो आई गो फ्रॉम हेयर टिल हेयर, से कितना मीटर होगा? 300 मीटर, आई सपोज 300 to 400 मीटर, लेट्स टेक इट रैंडमली। ठीक, तो 300 मीटर है फॉर पीपल हु आर नॉट फ्रॉम प्रयागराज। आई टेल यू 300 मीटर करीब है सुभाष चौराहा से हॉट स्टफ चौराहा। हॉट स्टफ इज अ रेस्टोरेंट आउट देयर। अब बताओ सॉरी, हाउ मच डिस्टेंस हैव आई कवर्ड? कितना डिस्टेंस कवर किया सुभाष चौराहा से हॉटस्टार चौराहा में? 300, 300। ठीक है, चलो ठीक है, अब डिस्टेंस को अभी वही रहने दो, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का होता है द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, बिटवीन बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल मतलब जहां पे एंड कर रहे हैं, उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, ठीक, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ठीक, ये जनरल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड कंसिडरिंग दिस केस, दिस इज अ सिंगल लेन। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर? 300 मीटर ही होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टार्ट यहीं से कर रहे हो, जाना यहीं पर है, तो रास्ता एक ही है, रास्ता तो वही रहेगा ना। और कंसिडरिंग और भी रास्ते होंगे, गली गलियारे से आ सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। बट द पॉइंट इज कि अगर हम कंसिडर करें कि कुछ नहीं है, इधर बिल्डिंग है, इधर बिल्डिंग है, बस एक रोड है जिससे हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, डिस्टेंस 300 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर, डन। अब डिस्प्लेसमेंट को अलग से समझते हैं। नाउ से अगेन, वंस अगेन, फिर से मैं यहाँ पे चौराहे पे खड़ा हूँ, पता नहीं क्यों खड़ा हूँ, बस खड़ा हूँ। हॉट स्टफ पे यहाँ आर्यन खड़ा है, ओके, माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग ओवर देयर। नाउ व्हाट हैपेंस इज I I was having my wallet here at the initial point. I was having my wallet. Aryan says, "Ki Yash, come over to the hot stuff. We'll have some food over there." चलो भाई ठीक है, 300 मीटर गए, 300 मीटर गए। अब यहाँ पे आए तो क्या हुआ? अब वही मतलब
हुआ ये कि अब वहां पे आए भाई, खाना खाने की बात है, ठीक। फिर याद आया, कह रहे यार वॉलेट कहाँ गया। मतलब वो कंजूसी में नहीं कि वॉलेट नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। द पॉइंट इज, आई रिमेम्बर, आई सडनली लाइक इट स्ट्रक माई माइंड कि अरे यार, आई हैड द वॉलेट व्हेन आई वाज एट द इनिशियल पॉइंट, बट नाउ एट द फाइनल पॉइंट आई एम नॉट हैविंग माई वॉलेट। सो गया कहाँ पे वॉलेट मेरा। सो देन आई, मतलब मुझे शायद मे बी एक काइंड ऑफ इंट्यूशन हुआ कि आई माइट हैव ड्रॉप माई वॉलेट एट द इनिशियल पॉइंट, मतलब सुभाष चौराहे समवेयर आई हैव ड्रॉप माई वॉलेट, ठीक है। देन आरएन सेज कि ओके ओके, नो इश्यूज, यू गो बैक टू द पॉइंट, गो गेट योर वॉलेट। चलो, ये डिस्टेंस कितना हुआ जल्दी से एक बार चैट में रिप्लाई कर दो। 5 10 2 मिनट और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास। नहीं नहीं, केवल ये डिस्टेंस, केवल ये डिस्टेंस। नहीं 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 सेजल, I think you have misunderstood. I'll explain. No, no worries. Anil and Vivek, yes, you are right. जितना गए हैं उतना ही तो आए, तो 300 ही तो होगा। ओके, जितना गए उतना ही तो वापस आओगे, कंसिडरिंग कि गली गलियारे से नहीं आ रहे हो, उतना ही होगा ना फिर तो। अब यहाँ पे वापस आए। अब चलो, जल्दी से क्विकली बताओ मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस 600 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो, अब बताओ, अब वॉलेट लिए हैं और खाना भी है, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ वॉलेट मिल गया यहाँ पे, चलो वॉलेट यहाँ पड़ा तो उठाया, और फिर बोला कि हाँ यार चलो अब खाना भी तो है, तो हॉटस्टार भी जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से गए कि हाँ यार आ रहे हैं, चलो आ गए, नाउ वी नाउ आई हैव माय वॉलेट, लेट्स स्पेंड आवर मनी ऑन सम जंक फूड एंड एंजॉय द डे, ठीक। 300 मीटर आ गए इधर। अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। Shagun, you have answered distance, right? That if the distance, then fine. Displacement 300, डिस्टेंस 900, करेक्ट आंसर, एकदम सही। क्योंकि अब देखो, इनिशियल तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, इनिशियल से यहाँ गए फाइनल पे, लेकिन फाइनल पे रुके नहीं, फाइनल से फिर इनिशियल पे आ गए, और फिर इनिशियल से फाइनल पे आए। तो अब तो फाइनल डिस्टेंस जब मेजर करो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जब मेजर करोगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल ही करोगे ना, तो फाइनली जब स्टॉप किए हो तब वहां से मेजर करोगे। तो 300 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस तो उतना ही होगा 900 मीटर, क्योंकि जितना पाथ कवर किया उतना तुम्हारा हो जाएगा डिस्टेंस। दैट इज इट, सिंपल सा, ये हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। और एक चीज और, अब देखो, ये देखो, यार ये F1 का एक रेसिंग ट्रैक मान लो, कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक। F1 रेसिंग ट्रैक है, F1 कार, ठीक है। अब हमको बता दिया गया है कि द डिस्टेंस टू बी कवर्ड थ्रू आउट द होल रेसिंग ट्रैक दैट इज 2 किलोमीटर्स, ठीक। तो चलो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ मेरा। 2 किलोमीटर ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भाई ये पूरा पाथ हम कवर कर रहे हैं, ये 2 किलोमीटर ही है पूरा, हमको पहले से ही पता है कि 2 किलोमीटर का पाथ है, मतलब कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस होना ही होना है, कोई चांस ही नहीं उसका कि कोई और तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस उतना ही रहेगा, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर हुआ, क्योंकि जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्प्लेस, जितना इनिशियल पे थे उतना फाइनल में हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल किया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि यहाँ से हम सपोज करो, चलो ठीक है, ये देखो, अब फाइनल से हमने क्या, अरे यार ये थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा एक बार, फिर से आई एम ड्राइंग दिस, सेम ट्रैक है, थोड़ा सा वही समझ लो उसको, जैसा भी हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर था, इनिशियल से स्टार्ट किया, फाइनल पे खत्म किया। अब हमने क्या किया कि हम एक नया ट्रैक लेके वापस गए इनिशियल पे, हमने क्या किया, एक नया ट्रैक ले लिया हमने, ठीक है, जिसका लेंथ
सेम था 2 किलोमीटर, बट पाथ थोड़े ज्यादा कर भी थे। अब डिस्टेंस बताइए एंड डिस्प्लेसमेंट क्विकली। ठीक है, एकदम सही, सबका आंसर सही है। ठीक, इस पे और भी कुछ कुछ बताना है बट वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट आज के लिए इतना वी हैव ड्रॉन आउट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट दैट डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। डजेंट मैटर तुम कोई भी पाथ चूज करो, तुम यहाँ से यहाँ ऐसे आओ, डजेंट मैटर तुम कहीं से भी होकर आओ, डिस्प्लेसमेंट जब तक तुम्हारा फाइनल इनिशियल है तब तक उस पर ही डिपेंड करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन फाइनल एज वेल एज इनिशियल पॉइंट, but distance is not independent. Distance does depend upon the path you are taking to reach a place. Okay, अगर say from Georgetown I have to go till civil lines, तो मे बी कि मैं गली गली वाले से जाऊँ जिसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, एंड हो सकता है कि आई फॉलो द मेन रोड जिसका डिस्टेंस थोड़ा सा और कम हो सकता है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पाथ में सेम रहेगा क्योंकि फाइनल और इनिशियल मेरी सेम हो रही है। डिस्टेंस पाथ सॉरी डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है, जो भी पाथ आप लोगे उसको पूरा उसको नापना पड़ेगा, वही डिस्टेंस देगा। और यहाँ से ये वापस आ गए तो डजेंट मैटर, चाहे तुम यहाँ से वापस आओ, चाहे तुम ऐसा भी नहीं है कि यहाँ अगर कार से गए और यहाँ फ्लाइट से वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हो जाएगा, तब भी सेम रहेगा। डिस्टेंस हो सकता है कि यार फ्लाइट से गए तो डिस्टेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि भाई एयर बेस से जाओगे तो ये इतना घुमावदार पाथ नहीं करना पड़ेगा फॉलो, बट डिस्टेंस नहीं डिपेंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट केवल फाइनल इनिशियल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। जैसे तुमको फाइनल इनिशियल पता है, फाइनल माइनस इनिशियल करो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इस पे और भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यहीं से हम लोग का मेन मतलब अब कॉन्सेप्चुअल और स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है एंड न्यूमेरिकल्स वी कैन डू, एंड बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स उसके, वो बस लगते हैं कि दोज आर वेरी टफ बट बहुत इजी होते हैं। एंड आई गिव यू वन मोर कॉन्सेप्ट जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बहुत मतलब लोगों को पता होता है बट दे स्टिल कमिट दैट मिस्टेक। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑल ये वो बहुत सिंपल टर्म्स में आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज चैट जो हम लोग का जो मेन बेसिक फाउंडेशन वाला ग्रुप है, प्लीज रिप्लाई इन दैट, प्लीज डू नॉट स्पैम द मेन ग्रुप, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, क्वेश्चन सारे बेसिक फाउंडेशन वाले कोर्स में ही पूछना है प्लीज, नो वन विल बी आस्किंग क्वेश्चंस इन द मेन ग्रुप। ओके, so Anjali, if you're there and you could please stop the recording.